बायगडी ढकला तुम लोगों को हाँ सब हाँ सर को पीछे जरा सर को पीछे 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 इधर इधर बाजू ढकलू नको स्वामी जी स्वामी जरा सर सामने ये इधर देखो इधर देखो इधर हाँ इधर देखो हाँ राइट चलो मामू इधर देखो मामू ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತಹ ರಸ್ತೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಇವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಕ್ಕಳಿಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿದಾಗ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ರಸ್ತೆ ಇದೆ ಬಹಳ ಎಲ್ಲರ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂಥ ರಸ್ತೆ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಏನು 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಲಿ 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ 150 60 ಕೋಟಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಜನರಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 32 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ 92 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಏನು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಹಿಂದೆ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗಿತ್ತು 92 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಮೂಲಕ ಈ ವರ್ಷದ ಇದರಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿತ್ತು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಮೀದ್ ಮುಷ್ರಿಫ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂಥ ರಸ್ತೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಏನು ಇವತ್ತು ದಿವಸ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅದು ವಾದ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ತದೆ ವಾದ ವಿವಾದ ಇದ್ರೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡುತ್ತಾನ ನಾವು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಟೆಂಡರ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾಳೆ ಒಬ್ರು ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನೇ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಬಹಳ ಇದರಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಮೀದ್ ಮುಷ್ರಿಫ್ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿದ ಆಗಿದ್ ಹೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೀಗ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ಒಂದು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಸಮಾಜದವರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಸಮಾಜ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಏನು ಹಿಂದೆ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಆ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆ ತಾರತಮ್ಯ 100 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ
ಇವತ್ತು ತಾರತಮ್ಯ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ KDP ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಕೇಳಿ ಈಗ ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾರು ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೇಳಿದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗ 10 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು 10 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗದ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು. ಇದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬೈತೀನಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ತಾಜ್ ಬೋಡಿ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಏನು ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಮಹಾರಾಜರು ಏನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನನಗಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು हमारे वार्ड के लोगों को और हमारे MB पाटिल साहब, सुनील गौड़ा साहब, हमीद मुस्लिम साहब और शकील बागमारे साहब का सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो ये रोड का काम इतने दिन से पेंडिंग था, इसकी कोशिश कर रहे थे सब जने मिल के, और आज उसके MB पाटिल साहब आके उद्घाटन किए हैं। इंशाल्लाह इसके बाद ये जल्द से जल्द काम हम सब जने मिल के कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अभी गुत्ती पूजा हो रही उनको मालूम था, फिर भी प्रोटेस्ट कई कर रहे थे तुम्हारे खिलाफ? नहीं, वो सबको पता था। टेंडर साहब भी बोले तो अब भी क्लैरिटी करे तो साहब 18 को टेंडर होता, उसके बाद वर्क ऑर्डर देते, उसके बाद काम चालू होता। साहब ही बोले तो हमारे मीडिया के माध्यम से अभी जस्ट बोले तो साहब, मैं भी वो बोल रहा था जो मेरे सामने गिरे हुए जो इलेक्शन हारे हैं उनका अभी चलने वाला, ये राजकीय में बोलने वाले करने वाले चलने वाला। मैं क्या नाराज नहीं हुआ उनसे। तुम्हारे ऊपर आरोप भी लगा रहे थे, सब आरोप भी बेकार हो गए तो तुम्हारे सामने चाहिए। अभी काम अच्छा होता, डेवलपमेंट इंशाल्लाह हमें और हमारे लीडर हैं अमित बा, उनको लेके काम करते हैं। अभी काम की शुरुआत कब से हुई? कल से अतिक्रमण चालू होता है, उसके बाद गटार का लाइन आउट हो गया, गटार चालू होती है, उसके बाद CC चालू। तो ये रोड कितने महीनों में कंप्लीट करके? नहीं, अभी रमजान है, 2 महीने छोड़ को। जब तक हम गटार कंप्लीट करते लोगों को तकलीफ नहीं होना, रोड खोदे तो तकलीफ होती है। रोड का कंप्लीट करके रोड रमजान जैसे होता रोड खोदते। मेरा नाम अफरोज वाटी, सुखिया वाटी का बेटा, मैं वार्ड नंबर 25। मेंबर साहब, रोड तो बन रही है, बहुत अच्छी खुशी की बात है। जहाँ पर आप गटार की बात कर रहे हैं, क्या है रोड जितनी है हम भी देख रहे हैं, आपका बचपन गया, हमारे बचपन गया, हमारे वालिद साहब भी देखे हैं, मुशरफ साहब भी देखे हैं। ये रोड जो है नैरो है यानी छोटी है, इसका वसीकरण कब होगा? नाम पे जो है अतिक्रमण होता है, हर साल या 2 साल में एक बार अतिक्रमण होता है। VCC वाले आते हैं, अतिक्रमण करते हैं, अतिक्रमण करके वहाँ पे कागज में पैसे डाल के वो ले जाते हैं। फिर लोग जो वहाँ पर आते हैं, तो परमानेंट सोल्यूशन रोड का कब होगा? अभी क्या है, इसमें 5 फुट जो शॉर्ट है, फुटपाथ है, वो किसको नहीं दिख गया। वो फुटपाथ पहली बात काट रहे हैं, काट के वो फुटपाथ के नीचे से गटार जाती है, वो तो एक्स्ट्रा 5 फुट मिला। ऐसा करके शॉर्ट उसको कवर कर रहे हैं। थोड़े 2 प्लाटा हैं, वो कमिश्नर साहब को मास्टर प्लान में काटो बोल रहे हैं, उनको उन्होंने भी रेडी है पार्टी। जब उनको अमाउंट पहुँचेगा और थोड़ा रोड चौड़ी होती है। पब्लिक का डिमांड है आपसे और हमीद मुशरफ साहब से कि यहाँ पर जो है अभी तक जो है मास्टर प्लान नहीं आया है, क्योंकि बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे हेरिटेज का भी नाम दिया गया है। जैसे आप मैत्रमल देख सकते हैं, वहाँ पे एक मीनार गिरा हुआ है, तो अभी तक आर्कियोलॉजिकल वाले उस पर उसकी मरम्मत नहीं कर पाए। और जामिया मस्जिद का भी हाल है, काफ़ी देश और विदेश से यहाँ टूरिस्ट आते हैं। तो इस रोड के मास्टर प्लान के लिए क्या आपने प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट को या फिर VCC को या MB पाटिल साहब को? इसके बारे में इमारत खाते वाले के बारे में तो ये भंगीमाल का जो गिरा मास्टर प्लान नहीं होता हो क्या, ये जो भंगीमाल गिरी उसे भी मनवी देश है विजय कुमार को उधर है। और बाद में आसार महल के जीबी गार्डन सामने जो दीवार पड़ी उसमें कुत्ते आके बच्चों को लड़े थे, जब भी जाके हमें उसे मनवी देश है। और बच्चे बसा आसार के अंदर 8 बच्चे मर गए, साहब पास टाइम नहीं था। और इंशाल्लाह अमित भाई के लेके वहाँ जाके साहब को लेकर के आसार महल का एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं हमें।
ठीक है, नाम बोलो। अफरोज वाटी। अभी भाई शॉर्ट कुछ सवाल करना छोटा। ओके, कुछ नहीं। जैसे आप सभी को पता है कि एमजीएन फंड के ज़रिए आज से बीजापुर शहर में माइनॉरिटी एरिया में काम शुरू हो चुके हैं। ख़ास करके मैं इस मौके पर हमारे इंचार्ज मिनिस्टर श्रीमान जनाब एमबी पाटिल जी का तहे दिल से हम पूरे माइनॉरिटी की तरफ से उनका हम शुक्रगुजार हैं कि उन्हीं के बदौलत आज हमारे माइनॉरिटी में काम शुरू हो चुके हैं। कि जैसे कि आप सभी को पता है, एक नालायक मेंबर चुनने के, एक नालायक एमएलए चुनने की वजह से कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो एमएलए आज तक माइनॉरिटी इलाकों में देखा तक नहीं था, तो उस एमएलए के कारण आज हमारे पूरे माइनॉरिटी, ये सिर्फ एक वार्ड की बात नहीं कर रहा मैं, जितने भी माइनॉरिटी वार्ड हैं उस वार्ड में हालात हमारे पूरी तरह से रोडों के होने या किसी और मसले के होने पूरे खस्ता हालत में थे। तो एमबी पाटिल जी की कृपा यूँ समझिए कि आज बीजापुर में हो गई। उन्होंने 160 करोड़ एमजीएन फंड सैंक्शन करके, सिर्फ अभी एमबी पाटिल साहब जी ने खुद कहा कि 60 करोड़ सिर्फ ये जेएम रोड तक 60 करोड़ तक का काम उन्होंने शुरू किया है। तो ये हम बीजापुर वालों के लिए, माइनॉरिटी वालों के लिए मैं समझता हूँ बहुत खुशी की बात है। भले देर से हुआ मगर काम पूरी तरह से सही तरीके से होगा, ये उम्मीद रखते हैं। क्योंकि अभी अभी एमबी पाटिल साहब ने जिस कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्टर को भी सीधे सीधे यूँ समझिए चेतावनी दे डाली है। अगर एक पैसे का भी गलत इस्तेमाल हुआ या एक पैसा भी कमीशन का इधर उधर करने की कोशिश की या गलत तरीके से रोड बनाने की कोशिश की, तो कानूनी प्रकार एक्शन ली जाएगी। इससे सीधा साबित होता है कि आने वाले कल में ये टॉप रोड सच में होगी, जो हमारे भाई अफरोज वाटी जो कह रहे थे कि हमारे सुफिया मैडम जो कह रहे थे कि ये हाईटेक रोड होगी, एमबी पाटिल के बयान से साबित होता है कि ये सच में एक हाईटेक रोड होगी। क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये कॉन्ट्रैक्ट अलॉटमेंट हुआ है उसे सीधा सीधा चेतावनी दे डाली है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि एमबी पाटिल साहब के नेतृत्व में, हमीद मुशीफ साहब के लीडरशिप में इस तरह के काम शुरू माइनॉरिटी में हो चुके हैं। हमें खुशी इस बात की है कि बीजापुर शहर में कोई हमारा सुनने वाला भी है, कोई देखने वाला भी है और कोई काम करवाने वाला भी है। इसीलिए हम पूरे माइनॉरिटी मिलकर जनाब श्रीमान एमबी पाटिल का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं आपके माध्यम के जरिए। डेवलपमेंट के लिए इससे पहला भी फंड आया था। जी जी, वो फंड का यूज, वही मैं आपको पहले बोला, नालायक एमएलए चुनने की वजह से क्या ये यूँ समझिए कि हम लोगों की भी बहुत से गलतियां हैं। माइनॉरिटी की को भी मैं बात कहूँगा, क्योंकि हमारी ही गलतियों का नतीजा हम इलेक्शन आईडी तो बना लेते हैं मगर इलेक्शन आईडी का सही इस्तेमाल नहीं करते। यानी कि हम अपना पूरा 100% देने की हमें कोशिश करना चाहिए। इलेक्शन में हम अपना 100% नहीं देते, हम 40-50% देते हैं। इन 40-50% की वजह से हम 6,000-8,000 वोटों से हार रहे हैं। तो ये हम सबके लिए शर्म की बात है। तो कभी भी कौन सी भी चीज़ है 100% देने की कोशिश हम माइनॉरिटी को करना चाहिए। जिस दिन हम 100% अपना देंगे, इंशाल्लाह हमारे सामने कोई टिक नहीं पाएगा। मैं चैलेंज देता हूँ। और इस तरह के नफरती नेता, नालायक नेता सिर्फ बीजापुर से नहीं पूरे देश से खत्म होंगे जब मुसलमान एक होकर, माइनॉरिटी एक होकर पूरी तरह से 100% वोटिंग देगी। क्या आपको लगता है कि आने वाले इलेक्शन में माइनॉरिटी का एमएलए बैठेगा? इंशाल्लाह जरूर 100% बैठेगा। इसी मुहिम के तहत हामिद मुशर्रफ होने, हम होने, हमारी पूरी टीम, पूरी माइनॉरिटी टीम काम कर रही है। यहाँ तक के हर एक को ये जो एमएलए है ये बस आ चुका है। क्योंकि नफरत से किसी का पेट नहीं भरता और नफरत से अभिवृद्धि नहीं होती, ये सभी जानते हैं। मैं वार्ड नंबर 25 सुफिया वाटी, और हमारे रोड का काम बहुत दिन से रुका था। एमबी पाटिल, सुनील पाटिल मिल को बहुत कोशिश करे। मेरा बेटा ये हमीद भैया बहुत, उन्होंने भी हमारे बेटे के साथ बहुत उन्होंने साथ दिए और सब भी मिल को ये काम सैंक्शन करे। हमारा काम चालू हुआ आज। एमबी पाटिल का, सुनील पाटिल का और हमीद भैया का बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और मेरे वार्ड के पूरे नौजवान औरतें, हमारे बच्चे, बेटा ना बेटियाँ, सब मेरा साथ दिए, मेरे बच्चे का साथ दिए। और मेरे नौजवान बच्चे मेरे बेटे का बहुत साथ दिए, मेरा भी साथ दिए।
उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और आसार गली की पूरी जमात का शुक्रिया अदा करती हूँ। सब भी साथ दिया हमारे, हाँ? सब भी साथ दिए, सबका शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। पूरी मीडिया वाले का भी शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। ये मेरा बहुत साथ दिए, सब भी साथ